कमजोरी वाले स्टॉक्स एक बार फिर से देखते हैं जहां पर वीकनेस बनी हुई है। उनमें अभी भी बीपीसीएल, टीसीएस, कोलिडेज स्टॉक्स कमजोर है। अर्निंग का इंपैक्ट है और ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस एंड स्टॉक्स की ओपनिंग हुई है। ऑरबिंदो फार्मा में इनफैक्ट बाइंग जो है वो और एक्सटेंड हुई है और अब करीब 6.5% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। आईओसी में ठीक ठाक मूव है। आईसीआईसीआई बैंक एक और स्टॉक है, ये 318 के लेवल्स पर। ऑफ लेट आईसीआईसीआई बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रही भी है। ये अभिजीत क्या कमेंट्स है आईसीआईसीआई बैंक पर? 2% ऊपर है अब। That's right, Dipali. ICICI Bank is giving very good support to the banking group for sure. Structure काफ़ी strong है. Momentum is definitely intact. Don't see any immediate weakness on the daily charts. So ये जो momentum दिख रहा है 2% up, I think this will continue and support the overall bank nifty also. जी चलिए हरियर, इस बीच शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ अब और एक मेहमान जुड़े हैं इन्विजन कैपिटल से, नीलेश शाह हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नीलेश, मॉर्निंग टू यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। कैसा लग रहा है मार्केट आपको इस समय? गुड टू सी यू। आपकी टाई का जो कलर है वैसा ही कुछ है क्या मार्केट का कलर भी इस समय, मोर ऑन द रेड साइड? Well, the market I presume is green and it has been green for a while now. No, outlook I'm saying. But I think the overall medium to long term outlook continues to be very, very good. And I think with important economic reforms kicking in and the strong domestic liquidity, I think these are two factors which bode very well for the market. However, in the very short term, given the kind of run up that we have seen and the fact that on an aggregate basis the earnings season has not been very strong enough, it's quite possible that we could see the markets getting into some kind of a consolidation mode. जी नीलेश, तो इस वक्त फिर आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या आपके हिसाब से ये टाइम है व्हेन जब निफ्टी 9600 पर है कि थोड़ी सी पोर्टफोलियो रीशफलिंग कर लेनी चाहिए, स्पेशली उन स्टॉक्स में, उन बड़े स्टॉक्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए जो कि काफी अच्छा रनअप दिखा चुके हैं? टू सम एक्सटेंट येस, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं होगा ये लेवल्स पे, क्योंकि वैल्यूएशंस रिच है और कंपनीज के परफॉर्मेंस ऑन एन एग्रीगेट बेसिस अभी भी आनी बाकी है। तो थोड़ा जो बोलते हैं कि जो शॉर्ट टर्म एक मिसमैच है बिटवीन वेयर द प्राइजेस आर एंड वेयर द अर्निंग्स आर मटीरियलाइजिंग, so there I don't think at these kind of levels there would be any harm in doing some kind of profit booking, and so that you can re-enter when there is some kind of correction in the marketplace. प्रॉफिट टेकिंग नीलेश, ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड कि इन लेवल्स पर शायद की जा सकती है, बट वो जो री एंट्री की बात आप कर रहे हैं, यू नो एट सम करेक्शन, दैट बिकम्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन कि कहाँ पर एंट्री करें। आई मीन लुकिंग एट द वैल्यूएशन, चाहे वो इंडेक्स का हो या फिर सम ऑफ द फ्रंट रनर स्टॉक्स, आपको क्या लगता है पहली अपॉर्चुनिटी कहाँ आ सकती है एंट्री की? Well, obviously this whole concept of profit booking and re-entering, I agree, it's a very, very difficult proposition, and honestly is really not meant for somebody who's really not well equipped to do this. And I think overall a more disciplined approach to investing should be followed. So I think whatever investments you do make, ideally you should do it from a long-term perspective. So if you still have a 3 to 5 year horizon, obviously you should continue to hold, trying to kind of make that next 5-7% may not kind of make too much of sense. So I'd advise that basically, you know, investors should take more a long-term approach. I think in terms of for those investors who want to do some profit booking and re-enter, maybe levels of around 9,000 on the Nifty, I think 9,000, 9,100, I think are the kind of levels where you could see the market coming down to, and I think that would provide a fantastic re-entry opportunity for a lot of investors sitting on the fence, or investors who basically book profits right now, and for them it would be a fantastic opportunity to redeploy the capital. जी नीलेश, क्योंकि आपने कहा कि ट्रेंड मार्केट का आपको पॉजिटिव लग रहा है लॉन्ग टर्म में, तो एक चीज और बताइए कि जो लीडरशिप है मार्केट में वो कहाँ रहेगी एग्जैक्टली? क्या ये लार्ज एफएमसीजी नेम्स ही होंगे जो कि इंडेक्स को ड्राइव करेंगे, बड़े प्राइवेट बैंक्स होंगे, कैपिटल गुड स्टॉक्स होंगे? एग्जैक्टली लीडरशिप कहाँ देख रहे हैं आप? आई थिंक सबसे बड़ी लीडरशिप जो है वो कैपिटल गुड्स से आएगी। आई थिंक ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है। इन्वेस्टमेंट साइकिल अभी भी पिकअप होना बाकी है।
और ऐसा लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड कैपिटल गुड सेक्टर है वो उसमें ऑलरेडी पिकअप होना शुरू हो गया है। जो इंडस्ट्रियल लेड केपेक्स साइकिल है उसमें अभी भी शायद कुछ क्वार्टर्स का एक लैग है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि कुछ क्वार्टर्स के बाद इंडस्ट्रियल लेड केपेक्स साइकिल भी पिकअप होगा। तो FY18 अभी भी शायद एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड केपेक्स साइकिल पिकअप होगा, बट आई थिंक उसके बाद FY19 FY20 उसमें काफ़ी कुछ इंडस्ट्रियल लेड केपेक्स साइकिल भी पिकअप होगा। सो आई थिंक कैपिटल गुड्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर। सेकेंड इज़ हाउसिंग रिलेटेड, आई थिंक वो भी बहुत एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे ओवरऑल डिमांड फॉर होम्स, होम लोन्स, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, सीमेंट, ये सारी जो उसके एसोसिएटेड सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। हो सकता है कि अभी भी ये 1 या 2 क्वार्टर का अभी भी एक शायद एक थोड़ा बहुत पॉज आ सकता है, बट उसके बाद हमारा ऐसा मानना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग या ओवरऑल हाउसिंग जो एक सेगमेंट है वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है। बिल्कुल। इसमें इनफैक्ट चलिए हाउसिंग की बात चली ही है, हाउसिंग फाइनेंस में हेमंत आपकी टॉप पिक कौन सी है? देखिए मेरे हिसाब से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को देखना चाहिए। देखिए HDFC लिमिटेड भी बहुत स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो थोड़ा पैसा आप जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे इंडिया बुल्स हाउसिंग ज्यादा पसंद आता है। मेरे हिसाब से 1090 1085 का आप स्टॉप लॉस रखिए। 1160 का टारगेट तो मुझे इमीडिएट शॉर्ट टर्म यानी 2 से 3 सेशंस में आता हुआ लग रहा है। अगर आप स्टेबल काउंटर चाहते हैं हाउसिंग में तो HDFC लिमिटेड इज वेरी स्टेबल। मुझे लगता है जिस तरह से अब 1550 में पुट राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में ही हमें 1645 से 1660 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जी नीलेश, आपने अफोर्डेबल हाउसिंग थीम की बात की, लेकिन इस थीम से जुड़ी हुई कई सारी पॉकेट्स हैं। आप देखिए ऑलरेडी हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव रियल एस्टेट स्पेस में देखा है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के स्टॉक्स ऑलरेडी काफी अच्छा चल चुके हैं। तो प्रिसाइज पॉकेट कौन सी है जो कि आपको अभी भी अच्छी लग रही है? क्या ये रियल एस्टेट शेयर्स हैं, क्या ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, पेंट स्टॉक्स हैं, टाइल स्टॉक्स हैं? एग्जैक्टली कौन सी पॉकेट अभी आपको अच्छी लग रही है? आई थिंक ये लेवल्स पे आई थिंक जो होम लोन कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, उनके वैल्यूएशन जैसे आपने बताया काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी रनअप हो चुके हैं। तो ये सेगमेंट में थोड़ा केयरफुल और कॉशियस रहना चाहिए। जो सबसे अट्रैक्टिव सेगमेंट है वो है क्वालिटी हाउसिंग कंपनीज। बेसिकली जो क्वालिटी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज है जिनका डेट काफ़ी रीजनेबल है, मैनेजमेंट क्वालिटी ठीक ठाक है, उनका एक पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर लोकल एरिया में एक फोकस अच्छा है, उसके ऊपर काफ़ी एक आई थिंक अट्रैक्टिव प्रॉस्पेक्ट्स हैं। और हमको ऐसे लग रहा है कि ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years ये एक सेगमेंट अच्छा है जहाँ पे पोटेंशियल फॉर री रेटिंग काफ़ी अच्छा है, अर्निंग्स मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड विथ इंटरेस्ट रेट्स फॉलिंग एंड द हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट बिकमिंग सो कॉम्पिटिटिव, हमारा ऐसा मानना है कि जो क्वालिटी हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनीज हैं वो एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। सेकंड कि जो सीमेंट है, सीमेंट में अराउंड 2/3 ऑफ द डिमांड हाउसिंग से आता है, और अभी भी सीमेंट कंपनीज की एवरेज यूटिलाइजेशन 70-75% के आसपास है। तो नेक्स्ट 2-3 years में अगर हाउसिंग एक्टिविटी पिकअप होती है तो सीमेंट की डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो सकती है, जिससे उनकी यूटिलाइजेशन भी बढ़ सकती है और उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो सकती है। लेकिन थोड़ा सीमेंट कंपनीज में भी रनअप हुआ है, तो करेक्शंस पे सीमेंट कंपनीज ऑल्सो लुक वेरी अट्रैक्टिव। एब्सोल्युटली। चलिए हेमंत, इस बीच आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ अब के सुब्रमण्यम भी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुब्रमण्यम, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ यू नो एज एक्सपेक्टेड एक लिमिटेड रेंज में मार्केट निफ्टी इज़ बैली होल्डिंग ऑन अबाउट 9600, लेकिन हाँ कम से कम आज के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ये ग्राइंड देखने को मिलेगा। अच्छी चीज़ ये है कि इफ़ यू लुक एट निफ्टी बैंक और उसका इंट्राडे लो से जो मूव है उससे अगर आप देखें तो इस समय निफ्टी बैंक ठीक रुझान दिखा रहा है। इनफैक्ट एज वी स्पीक ये 116 पॉइंट ऊपर है निफ्टी बैंक। सो पहले तो निफ्टी बैंक पर आपका व्यू क्या है सुब्रा आज के लिए? मॉर्निंग मिहिर, जैसे आपने बताया आई थिंक आज का जो भी अगर तेजी होने का दावेदार शायद बैंक निफ्टी के पास है, क्योंकि कल की सेशन में अगर आप देखें तो हमने हेवी वेट्स में भी काफ़ी बिकॉली देखा। आई थिंक ICICI बैंक, SBI में सब नरमी देखी थी। फिलहाल आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शायद लोअर लेवल्स पे यहाँ पर बाइंग आ रही है।
तो इस लिहाज से मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर आज बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा बढ़त ना आवे, लेकिन कम से कम एक 23,500 550 यहाँ तक जाने की संभावना है। और मेरा मानना है कि शायद SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये काफ़ी दोनों अहम रहेंगे। और शायद और SBI खास करके कल ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन के लेवल पे आया, ऑलमोस्ट 285 के लेवल पे आया, तो आई थिंक वो ये काफ़ी क्रिटिकल रह सकता है। यहाँ से बाउंस आए तो 295 तक जा सकेगा, और अगर वीकनेस आती है तो शायद यहाँ पर गिरावट भी आ सकती है। तो आई थिंक ब्रॉडली PSU बैंकिंग पैक पे फोकस रहेगी। और मेरा मानना है कि शायद बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI खास करके जो इंडेक्स हेवीवेट्स हैं, ये दोनों काफ़ी आज के दिन पे अहम रहेंगे, और आई थिंक दे विल बी पॉजिटिवली बाइस्ड। जी नीलेश, आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या प्राइवेट और PSU बैंक्स में? अर्निंग्स भी आपने देखी है और साथ ही NPA ऑर्डिनेंस पर जो कामकाज हुआ है, क्या इन फैक्टर्स के मद्देनजर पिक करने चाहिए अभी PSU या फिर प्राइवेट बैंक्स? प्राइवेट बैंक्स ज़्यादा अट्रैक्टिव और स्टेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल कंस्ट्रेंट नहीं है, और ऐसे लग रहा है कि उनका मार्केट शेयर गेन्स हो रहा है वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी भी रिकवरी काफ़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि अभी भी इनके काफ़ी चैलेंजेस अभी भी है। यस, गवर्नमेंट ने काफ़ी सब अच्छे कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स उठाए हैं NPA रेजोल्यूशन के लिए, लेकिन अभी भी ये है कि जैसे जैसे ये राइट ऑफ करते जाएंगे NPAs, तो उनको कैपिटल की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आएगी, और वो कैपिटल कहाँ से आएगा वो प्रश्न का अभी भी कोई सीधा सलूशन नहीं है। तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अभी भी चैलेंजेस काफ़ी हैं, और अभी भी एक परमानेंट सलूशन अभी भी तक एक उभरा नहीं है, और अगर आएगा तो भी थोड़ा लॉन्ग टर्म हो सकता है। उसके सामने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उनके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। जैसे जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स मार्केट शेयर लॉस करेंगे तो वो सीधा गेन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को होगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर रिलेटिवली बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। लेकिन नीलेश, आपका की टेक अवे इस बार जो Q4 नंबर्स आए, उससे क्या रहा है? ये Q4 नंबर्स थोड़े चैलेंजिंग नंबर्स थे ओवरऑल बेसिस पे, बारिंग सम पैसेंजर कार कंपनीज और ऑटो एंसिलरी कंपनीज, बट इन जनरल ओवरऑल या कुछ सिलेक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। बट अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड ये देखने को आया है कि कई कंपनीज को अभी भी जो डीमोनेटाइजेशन रिलेटेड जो पेन थे, वो चैलेंजेस Q4 में उभर के आए हैं, नंबर 1। नंबर 2, कई कंपनीज को थोड़े मार्जिन प्रेशर्स भी आए हैं, और कई कंपनीज को वन टाइम राइट ऑफ्स भी आए हैं। तो ओवरऑल ऑन अ बेसिस Q4 नंबर्स जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से काफ़ी कम थे, और ये एक अच्छी बात ये भी है कि ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए काफ़ी एक लो बेस सेट करता है, जो एक ये जो नेगेटिविटी है उसमें ये एक पॉजिटिव उभर के आता है। जी सुब्रा, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा और इंडिया सीमेंस, ये तीनों ही स्टॉक्स कल करेक्ट हुए थे अलग अलग रीजंस की वजह से, और तीनों में ही रिकवरी दिख रही है। कोई अपॉर्चुनिटी है क्या इंट्राडे पर्सपेक्टिव से खरीदारी की तरफ इन तीनों में से किसी शेयर में? दीवार, इस ग्रुप की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब मार्केट में वीकनेस आती है तो सबसे ज़्यादा गिरावट इसी में देखने को मिलती है। मुझे इनफैक्ट बीच में रिलायंस कैपिटल काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, शायद मैंने रिकमेंड भी किया होगा चैनल पे, लेकिन मेरा मानना है कि शायद जो इतनी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है और इतनी पैनिक के साथ स्टॉक्स गिरती है, और जिस बाजार में हमें दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, आई थिंक फॉर द टाइम बिंग आई थिंक अवॉइड करना ठीक रहेगा, क्योंकि आरकॉम की जो गिरावट है ये काफ़ी भारी, मतलब दूसरे स्टॉक्स पे भी भारी पड़ रहे हैं, और भले हो सके यहाँ पर ज़बरदस्त करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिले, लेकिन हिम्मत फिलहाल नहीं आ रही है, और क्योंकि शॉर्ट्स काफ़ी बढ़ रही है सब काउंटर्स में, और इसका जो कहाँ जाके इस गिरावट का रुकावट आएगा, एक दिन में मामूली सी बाउंस देखने को मिल सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद ऊपर लेवल पर वापस सेलिंग प्रेशर आ सकती है। बेटर टू अवॉइड दिस स्टॉक्स ऑन द लॉन्ग साइड। बिल्कुल, इनफैक्ट देखिए आरकॉम में हमने जो कल देखा था उनके डेट को लेकर जो कंसर्न्स थी, ये नीलेश, ये टेंडेंसी हमने वैसे भी जो हैवी डेट वाली कंपनीज है उसमें कल देखी, एंड मे बी आरकॉम जस्ट बिकम्स अ पोस्टर बॉय फॉर दैट, लेकिन ऐसी कंपनीज में कल अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था। तो एटलीस्ट ये जो आई वुड से डिफरेंशिएशन है मार्केट में बिटवीन अ गुड साउंड फंडामेंटल कंपनी एंड वीक स्ट्रक्चर्स, वीक बैलेंस शीट्स, वो और फेरोशियसली हो सकता है क्या?
एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो है वो ये है कि इन जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है, और जो टफ टाइम्स होता है उसमें जो आपको रियली अच्छी तरह प्रोटेक्ट करता है वो है आपकी बैलेंस शीट। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट टफ है और अगर आपके पास डेट नहीं के बराबर है या लो डेट है तो आप वो एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कोई कैश फ्लो रिलेटेड ऑब्लिगेशंस नहीं है या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस नहीं है। लेकिन जब आपकी बैलेंस शीट में डेट काफ़ी है तो वो डेट को सर्विस करने के लिए एक डिफ़िकल्ट बिजनेस एनवायरनमेंट में और भी चैलेंजिंग हो जाता है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को ये दो चीज़ ध्यान में रखने जैसी है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये बिनाइन एनवायरनमेंट है या चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, और दूसरा ये है कि जो बैलेंस शीट में क्या डेट पोजीशन है। ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर। जी, पूरी ऑटो स्पेस को देखें तो आज शुरुआत पॉजिटिव हुई है और मारुति सुजुकी लाइफ टाइम हाइस पर है, एस्कॉर्ट्स मोमेंटम बना हुआ है, अशोक लेलैंड, टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स, इन सभी का रुझान पॉजिटिव है। नीलेश, ये ऑटो स्टॉक्स, ज़्यादातर ऑटो स्टॉक्स बारिंग फ्यू लाइक टाटा मोटर्स या फिर M&M एक्सपेंसिव लग रहे हैं बाकी सभी शेयर्स वैल्यूएशन वाइज, लेकिन क्या अभी कुछ खरीद रहे हैं आप ऑटोज में? नहीं, ये लेवल्स पे आई थिंक ऑटोज़ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच्ड है और हो सकता है कि जो जून का महीना है उसमें इनके वॉल्यूम्स पे काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है बिकॉज ऑफ GST रिलेटेड टैक्स चेंजेस जो आने वाली है। तो हमारे हिसाब से ये लेवल पे जो डायरेक्ट OEMs है उनके ऊपर एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए, और जो ऑटो एंसिलरी, जो ऑटो कंपोनेंट पैक है उसके वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल है वर्सेस द OEM पैक। और ये जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उनमें डोमेस्टिक OEM अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल OEM अपॉर्चुनिटी है, रिप्लेसमेंट मार्केट है, ये सारे फैक्टर्स है जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इनके ओवर द लॉन्ग टर्म, तो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जी सुब्रा, ये ऑटो स्पेस में एक ऑटो एंसिलरी स्पेस से एक्साइड पर अपना व्यू बताइए, और दूसरा मारुति, M&M या फिर हीरो मोटोकॉर्प, इनमें से किसी पर आप ट्रेड लेंगे क्या? दीपल, आई थिंक अपना मारुति आई थिंक लगातार एक ट्रेडिंग बेट बन के उभर के आ रही है, क्योंकि इसमें अगर हम शुरू में भी देखें तो सीरीज की शुरुआत में 7,000 के ऊपर जैसे कंसोलिडेट किया, यहाँ पर हम यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। तो इंट्राडे लेवल्स पे आई थिंक काफ़ी अच्छी खासी पुल बैक निचले लेवल से देती है और अच्छी खासी ट्रेडिंग पैटर्न बनती जा रही है। तो मेरा मानना है कि शायद एक अच्छी ट्रेडिंग बेट है करंट लेवल पे, और मोमेंटम पे और भी 7,400 तक जा सकता है। और जहाँ तक दूसरे काउंटर्स की सवाल, आई थिंक अशोक लीलैंड एक अच्छा लग रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं 80 के पास ऐसा फिलहाल लग रहा है कि अच्छे खासे बेस फॉर्मेशन है, और यहाँ पर हमने शॉर्ट कवरिंग भी अच्छी खासी देख चुके हैं, 90 के आसपास पहुंच चुका है। तो यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम आने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक एक्साइड की बात की तो आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली एटलीस्ट लास्ट कपल ऑफ सीरीज में अच्छी खासी हमने बढ़त देखी है, उसके बाद गिरावट ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि शायद 220-225 इस लेवल पे अच्छी खासी एक बॉटम बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस आ सकती है, मामूली सी बाउंस। आई थिंक 235-240 तक डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं। आज लेदर स्टॉक्स में रुझान इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। हमने बाटा में देखा करीब 6% का मूव है, लिबर्टी शूज़ है जो कि करीब 12% चल रहा है, मिर्ज़ा इंटरनेशनल है, इस काउंटर पर हमने ठीक मूव देखा। ये सारे ही जो लेदर स्टॉक्स है इसमें रुझान काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, और आज वॉल्यूम्स भी इनफैक्ट ठीक ठाक हैं। बाटा पर सुब्रा क्या व्यू है आपका? वेल आई थिंक कल कुछ मैनेजमेंट की तरफ से कुछ बयान आई है, उसके चलते मार्केट में आई थिंक काफ़ी इसमें उत्साह यहाँ पर बन चुकी है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद करंट लेवल्स पे आई थिंक 580 तक जा सकती है, क्योंकि ये बेसिकली अंडर परफॉर्मर रही है। तो 580-585 यहाँ तक जाने की क्षमता रखती है, वहाँ पर आई थिंक मुनाफा वसूली आने की पूरी संभावना है। जी चलिए, यहाँ से सीधे रुक करेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट के, यानी सुपर शेयर। सुमित बताइए। शुक्रिया मेहर। आज जो कंपनी चुनी गई है वो डिफेंस स्पेस से है, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज़ को चुना है। कंपनी मेजरली जो प्राइवेटली डिफेंस से काम करने वाले कारोबार के अंदर है, और कई ऑर्डर्स गवर्नमेंट की ऑलरेडी कंपनी कामकाज कर भी रही है उनके ऊपर, और जिस तरह से गवर्नमेंट की इस पूरे स्पेस को लेकर स्पेंडिंग बढ़ी है उससे भी अच्छे ऑर्डर मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। कंपनी के जो मेजर कामकाज है उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का जो बिजनेस है वो भी इसके अंदर शामिल है, और साथ साथ जो PSLV जो गवर्नमेंट बनाती है उसके लिए भी
एंसिलरी सर्विस एंसिलरी प्रोवाइड कराने कंपनी कामकाज करती है। एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, रफली 60% के आसपास की हिस्सेदारी, और ये लगातार हिस्सेदारी जो है वो इंटैक्ट है। पिछले काफ़ी समय से प्रोमोटर की हिस्सेदारी इसी लेवल्स के आसपास इंटैक्ट है। Q4 के नंबर्स में ज़रूर ऑर्डर इनफ्लो को लेकर थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है गोइंग फॉरवर्ड वो काफ़ी साउंड है। इसके अलावा एक अच्छे डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी लगातार मेंटेन करी हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी के एटलीस्ट सेक्टर के कंपैरिजन में थोड़े बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सेलेक्टिव कंपनीज है जो कि गवर्नमेंट के क्राइटेरियाज के अंदर फिट बैठती हैं, जो कि एंसिलरी प्रोवाइड कराती है, और वालचंद नगर इंडस्ट्री उनमें से एक है जो कि इस तरह के इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है। जैसे जैसे गवर्नमेंट इस पूरे स्पेस को लेकर एक्सपैंड कर रही है और नए नए टाइप्स कर रही है, वैसे वैसे कंपनी के लिए भी अच्छे ऑर्डर आने की उम्मीद लगाई जा सकती है। 220 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स को रिफर किया, उनके अकॉर्डिंग 220 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। बिल्कुल, तो 220 के टारगेट के लिए आप ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर 172 का लेवल इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस बीच नीलेश, जो इस तरह के थीम्स हैं, अब चाहे वो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हो, उसमें हमने ठीक ठाक वाइब्रेंसी देखी है, या फिर GST से पहले इनफैक्ट पिछले 6 महीने से हमने पूरा जो लॉजिस्टिक स्पेस था उसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा है। नाउ राइडिंग द मॉनसून ट्रिगर, हमने फर्टिलाइज़र में अच्छा मूव देखा है, एग्री स्टॉक्स में अच्छा मूव देखा है। ये जो इस तरह के निश पॉकेट्स हैं, अब इसमें आपका व्यू क्या है? आई थिंक ये एक जो इंडिया जो एक ग्रोइंग और एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसमें हमेशा जैसे जैसे हर एक सेक्टर्स में एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आती है, और इसको जो बोलते हैं थीमेटिक इन्वेस्टिंग, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट थीम्स उभर के आती है, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहती है। लेकिन ये ध्यान में रखने वाली बात भी है कि कोई भी पर्टिकुलर थीम हो, उसके रिस्क फुल्ली तरह अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड करने चाहिए। कई रिस्क आर रेगुलेटरी रिलेटेड रिस्क, या कई जो है वो कंपटीशन रिलेटेड रिस्क भी हो सकती है। सो एक तो वो है। 2 इज़ कि कई दफ़ा जो थीम्स होती है वो प्ले आउट करने में काफ़ी एक समय बीत जाता है, एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड भी आ सकता है। तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली बात है। जैसे आपने डिफेंस का जो कहा है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है, बड़ी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये B2B बिजनेस है, जहाँ पे आपके कस्टमर्स 1 या 2 है, तो प्राइसिंग पावर भी लिमिटेड रहता है, वॉल्यूम गेम होता है, और एक थोड़ा एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस भी हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ जो टाइम रिलेटेड रिस्क है, कंपटीशन रिलेटेड रिस्क है, रेगुलेटरी रिलेटेड रिस्क है, ये सब रिस्क भी साथ में ध्यान में रखने जैसा ज़रूरी है। जी, शुक्रिया नीलेश आपका शामिल होने के लिए शो में, और अपने व्यूज़ मार्केट्स पर शेयर करने के लिए, और अपनी चॉइसेस भी बताने के लिए कि कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं। सुब्रा, औरोबिंदो फार्मा पर क्या टारगेट्स हो सकते हैं? अब ऑलरेडी 8.5% ऊपर ही आ चुका है। इन लेवल्स पर ये लॉन्ग ट्रेडर्स प्रॉफिट ले ले थोड़ा सा, या फिर होल्ड कर ले और ऊपर जा सकता है ये? ब्रॉडली तो दीवारी आई थिंक यहाँ पर लास्ट फ्यू सेशंस में यहाँ पर एक्चुअली शॉर्ट देखने को मिली है। तो आज के सेशन पे जो हमने ऑलरेडी बढ़त देख चुके हैं। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पर लास्ट 2-3 दिन में यहाँ पर फार्मा पे सेंटीमेंट सुधरती हुई नज़र आ रही है। तो हो सके यहाँ पर 500-525 के आसपास अच्छी खासी एक बेस फॉर्मेशन है, बट नियर टर्म आई थिंक थोड़ी बहुत एक 560-65 यहाँ तक आ सकती है, और यहाँ पर मुनाफा वसूली डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल करंट जंक्शन पर आई थिंक बेटर टू अवॉइड। जी, चलिए शुक्रिया सुब्रा आपका शामिल होने के लिए शो में, और अपने व्यूज सभी स्टॉक्स पर देने के लिए। मार्केट्स इंट्राडे हाईज पर 9600 के ऊपर अभी भी निफ्टी 9613 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कमोडिटीज की शुरुआत होने वाली है। चलते हैं मृत्युंजय के पास। मृत्युंजय, शुक्रिया दीपाली। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव 1 महीने की ऊंचाई पर है, जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर भी साफ तौर पर दिखा है, और $1268 प्रति औंस के करीब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड। और सिल्वर का भाव $17.50 प्रति औंस के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर दिख रहा है। इसके अलावा एशियाई शेयर बाजारों में नरमी का भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखा है। अब अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड का मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है, सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। $50 प्रति बैरल के आसपास है WTI क्रूड, और ब्रेंट क्रूड का भाव $52 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिलहाल भाव में हल्की नरमी है, और माना यह जा रहा है कि अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड कंज्यूमर है, वहाँ पर समर ड्राइविंग सीजन में क्रूड की मांग बढ़ेगी, और उसका इम्पैक्ट आपको शॉर्ट टर्म में प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। हमारे साथ बातचीत के लिए रविशंकर पांडे हैं, कार्बी कॉमट्रेड के एनालिस्ट, और साथ ही हमारे साथ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के
डायरेक्टर भरत कुमार हैं हैदराबाद से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल भरत कुमार आपसे ये होगा कि गोल्ड में तेज़ी के संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मिल रहे हैं, MCX पर किस तरह का कारोबार करना बेहतर रहेगा? MCX में भी द ट्रेंड इज बुलिश। द $1270 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, बट नेवरदलेस जैसे ही अराउंड 1262 के आसपास आ जाएगा, आई थिंक वन शुड बी ऑन द बाय साइड। इवन अगर हम लोग जी अराउंड 28,820 से लेकर 28,840 तक खरीद सकते हैं। On the higher side 29,000 अभी भी पेंडिंग है।